Now we are doing our next example, example number 12. The Fahrenheit temperature F and the absolute temperature K satisfy linear equation. Given that K is equal to 273 when F is equal to 32 and that K is equal to 373 when F is equal to 212. Express K in terms of F and find the value of F when K is equal to 0. यहाँ पर फिर से एक बार फ़ारेनहीट और सेंटीग्रेड वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई है कि फ़ारेनहीट टेम्परेचर एफ जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए एक रिलेशन बनाता है, लीनियर रिलेशन बनाता है। लीनियर रिलेशन क्या है दैट वी डोंट नो। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि के की वैल्यू जब 273 होती है तब एफ की वैल्यू 32 होती है, और के की वैल्यू जब 373 होती है तब एफ की वैल्यू 212 होती है। दो चीज़ें आपको बताई गई हैं। आपको के और एफ को आपस में रिलेट करना है और के को एफ के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और के की वैल्यू जब 0 होगी तब एफ की वैल्यू क्या है वो आपको ढूंढ के दिखाना है। हम एज्यूम करते हैं कि एफ को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और के को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एफ है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो के है। तो जो डेटा हमें दे के रखा हुआ है तो हमारे लिए दो पॉइंट मिल जाते हैं। पहला पॉइंट है 32 एंड 273, क्योंकि हमें बताया गया है इट इज़ गिवन दैट व्हेन के इज इक्वल टू 273 देन एफ इज इक्वल टू 32। It is also given that when k is equal to 373 then f is equal to 212. So we have another point 212 comma 373. Okay, we are applying 2 point form. The point fk is the arbitrary point. So y minus y1, y हमने लिख दिया k, y1 लिख दिया 273 is equal to y2 minus y1, that is 373 minus 273 upon x2 minus x1, that is 212 minus 32 into bracket x minus x1, that is f minus 32. So we will have k minus 273 is equal to 100 upon 180 into f minus 32. Okay, so what is the value of k over here? यहाँ पर थोड़ा लेवल का सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, that is k is equal to, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कट गया है, ठीक है। 5 2 ज़ा एंड 9 2 ज़ा 18, ऐसे 5/9 से यहाँ हमने काट दिया है। So it will be 5/9 f minus 3 plus 273. This is what the required equation is. Now they have asked us when f is k is equal to 0, then what will be the value of f? So we have put k is equal to 0 over here. 0 is equal to 5/9 into bracket f minus 32 plus 273. तो हमने k की जगह पर 0 डाल दिया। इसकी वजह से हमें f माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 273 इंटू 9/5 मिला, विच इज़ माइनस 491.4। सो f की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 459.4। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दी, लाइन की 2 पॉइंट फॉर्मूला। वी हैव अप्लाइड हियर द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, दिस थिंग वी हैव अप्लाइड। So this is not only one thing, we can do another way also. कैसे? Let us apply slope form. What is the slope form of the line? Simplest form is the slope form. Y is equal to mx plus c. So let the line is equal to y is equal to mx plus c. On y axis we have taken k and on x axis we have taken f. So we can write k is equal to mf plus c. We are applying these 2 points which are there on the line. The first point is 32 and 273, and second point is 212 and 373. So we would have two equations over here. 273 is equal to 32m plus c and 373 is equal to 212m plus c. हम ये इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हम थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करते हैं। This is the equation number 3 and this is the equation number 2, and we are subtracting them
हम उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ से c कट जाता है। 373 में से 273 गया तो हमारे पास कितना बच गया भैया, 100 बच गया। वी हैव 100 ओवर हियर। And after subtracting 32 from 212, we will have here it is 0 and here it is 18, 180 m, 180 m. So what is the value of m over here? The value of m over here is equal to 100 upon 180, 100 upon 180, which is nothing but, यहाँ पर हम 0 से 0 को काट देंगे, we have cancelled this 0 by 0, and applying here 5 2s are 20, 10 and 9 2s are 18. So we will have the value of m 5 by 9. What we will have? We will have the value m is equal to 5 by 9. Putting the value these in any one of the equation, we will get the value of c. This is another way, this is another method in which we have applied the y is equal to mx plus form, mx plus c वाला फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम mx प्लस सी डालेंगे तो वी हैव अनदर फॉर्मूला k इज इक्वल टू 5 बाई 9 f प्लस 2297 बाई 9। यहाँ पर हम k की वैल्यू 0 डालेंगे तब भी हमें ऊपर जैसा ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी नोट आपको दी है। नोट इज दैट वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी कंटेन्स टू कॉन्स्टेंट्स namely m and c. For finding those two constants, we need two conditions satisfying by the equation of the line. In all the example above, we are given two conditions to determine the equation. दो condition कम से कम होनी चाहिए, दो condition होगी तो दो वेरिएबल वाला इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा ये एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, आपको ये पता चल गया है तो नीचे फीडबैक में या कमेंट बॉक्स में आप अंडरस्टूड ऐसा लिखिए। ये वीडियो देखते रहिए, इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए।